morning, Jai Hind. I'm Colonel Avnish Sharma. On behalf of Military Literature Festival Association Chandigarh, we extend a hearty welcome to our Chief Guest, His Excellency Shri Guv Kataria, Honorable Governor of Punjab and Administrator Chandigarh. Our guest of honor, Major General Sunil Rampal, MGME, Headquarter Western Command, Mrs. Harpreet Kaur Babla, Mayor Chandigarh, eminent panelists, speakers, participants, esteemed veterans, members of the media, our young friends from schools and colleges across region, ladies and gentlemen. Military Literature Festival is a joint venture of Punjab Government, Chandigarh Administration and Headquarter Western Command. The inaugural festival was held at this very location during 2017, and the 9th edition of MLF is now underway. General Shergill, Chairman MLFA, will tell you more about the festival. General Shergill commanded a division in Jammu and Kashmir, a corps in the northeast, and was later Commandant Indian Military Academy. Earlier, he was the Defense Attaché in United States of America and Indian High Commissioner at London. After retirement, he was appointed Chairman Punjab Public Service Commission and later served as the Senior Advisor to the Chief Minister Punjab. Popularly and affectionately called Mao, he is the founder chairman of Military Literature Festival Association Chandigarh. General Shergill. Okay. Once again, I welcome all of you, and I can see in front of me a number of colleagues who went through the war in 1965. We are going to examine this war, some of the battles. However, your reflection must be on, can we do it that way again, or is it going to be different? And indeed, it's going to be different, because apart from the army operating on land, the navy in the seas, and the air force in the air, we are now faced with a multi-dimension, multi-domain warfare. And what has been added on? Electronic warfare, electromagnetic warfare, and space warfare. And all these have been united by what you can call information warfare, with the use of AI and various other technical adjustments. And what this has done, it has sharpened the decision cycle. In addition to that, do remember that the war will not only start at the front lines, it could equally do in space with the capture or destruction of satellites. So the whole gamut of war has become new, but I won't say that the nature of war has changed. Earlier, if the opposing general was killed or made to flee, you won the battle. If the opposing king was killed or made to flee, you won a country. It is actually something like that, because the battle may finish before the tactical operations have actually begun. And more than often, you will be fighting at the level of operations and in the rear. What we've got for you today, in addition, is heartland and rimland, and where does India stand, and who do they go in with. Heartland was
enunciated about 100 years ago by a geographer, Mackinder, Sir Mackinder. And quickly followed thereafter was the theory of rimland. And rimland was announced by Nicholas Pikeman, who came to be called the god of containment. And the reason is rimland is all of Eurasia, the littoral, the seas and the oceans, whereas heartland stretches from the east of Russia all the way through Russia and into Eastern Europe and southwards into the Central Asian states. And today, there's a formidable array in the heartland. You have China, you have North Korea, you have the Central Asian states, you've got Russia, and you've got Iran. And all these have been stitched together by the Chinese by a digital Silk Road. And the communications come all down to Iran. Also, the Central Asian states have been linked up. India falls, because of the Himalayas and the Karakoram, in the inner crescent, not exactly part of the heartland, a little out of it. And as far as the rimland is concerned, yes, we have a presence with a peninsula running down into the Indian Ocean and our island territories like the Andamans. So we have a role to play, and we have to choose our allies, because when you look around the world today, and particularly our country, one doesn't see any friends in the neighborhood. And so we are seeking friends much further away and hoping that they will help us. I'd like to just say something from the animal kingdom. You see, there are three principal, or you could say, big powers, and those are Russia, China, and the United States. All three of them are big lions. And do remember, lions have no friends, only allies to feed on a stripped carcass. So we have to fit ourselves, and although we have made allies in the sense from the point of view of the defense, however, the only route forward for us is to be ready ourselves. We are also touching upon, as I mentioned earlier, the 65 war and what it means to us today and what we can do. Having said this, we also have amongst us a contingent from the United Kingdom who are going to share with us what they do and how we are, in a way, affiliated together. I thank all of you for coming, and particularly His Excellency the Governor, and we'll take this further. Thank you very much. Thank you, General Shergill. Good morning, ladies and gentlemen, officers and children, soldiers, and distinguished guests on the dais. It is now my pleasure to introduce Colonel Avnish Sharma, author of Boots, Bonds, and Belly Laughs. His delightful book offers a candid and light-hearted glimpse into the life of an Indian soldier, capturing both the grit and humor of that define service life. Joining him, Colonel Avnish Sharma. Joining him is Mr. Hardeep Chandpuri, publisher of the book and owner of Fern Tree Publishing. Hardeep carries forward the proud legacy as the son of Brigadier Kuldeep Chandpuri, Mahavir Chakra awardee and hero of the Battle of Longewala.
in the 1971 Indian Pak War. We are also honored to welcome Mrs. Harpreet Kaur Babla, Mayor of Chandigarh, and also the daughter of an army officer, to the stage. I'd like to invite the dignitaries to release the book, Boots, Bonds, and Belly Laughs. Thank you, sir. Thank you, Honorable Governor, sir. And over to Colonel Avnish Sharma. My gratitude to His Excellency for having accorded the honor of releasing my debut book. Publishers these days are very hard to get, and I'm grateful to Hardeep Chandpuri to accept my project. The first time that I spoke with him, he was at the Golden Temple, and I believe it is via Guru's wish. My special thanks to General Shergill, who's penned the foreword to this book. I sent him a draft which he quietly ignored and came up with an original one. It is so typical of one and only Mao. I am also thankful to all my friends, my mentors, who appear in this book of anecdotes, and I wish them all. I'm particularly thankful to Ms. Saguna Jain, the co-founder along with Hardeep of Novel Bunch, for having guided me on to the title of the book. Thank you, ladies and gentlemen. As regards the book, I will just say that I promise that it has the power to wean you away from your mobile phones, whether you are at home or traveling. Thank you. Now for the release of the MLF magazine, which is a yearly ritual. It comprises articles on diverse topics by experts, and it has been aptly named Strategy and Heritage. It has been compiled by Major General Harvijay Singh and Colonel Nitin Chandra. May I request them to kindly come and have it released from His Excellency. Thank you. Now the last one on the agenda of book releases is the book Civil Military Fusion as a Metric of National Power and Comprehensive Security by Lieutenant General Raj Shukla. May I request him to kindly come up and have the book read. Please settle down, ladies and gentlemen. Shri Gulab Chand Kataria,
Honorable Governor of Punjab and Administrator Chandigarh, served as the Governor of Assam before he took up the office as the 37th Governor of Punjab last year in the month of July. He hails from Udaipur in Rajasthan, which he represented in the Lok Sabha from 89 to 91. He's held important portfolios in the government of Rajasthan, which includes the Home Minister, the PWD Minister, Education Minister, and the Minister for Rural Welfare and Panchayati Raj. अब लगभग 1 साल हो गया, मुझे सब जानते हैं। मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल के 9वें संस्करण समारोह में मंच पर उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल टी.एस. शेरगिल जी, मेजर जनरल सुनील रामपाल जी, सभी आर्मी के अधिकारीगण, सेवानिवृत्त अधिकारीगण और प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों, ये वास्तव में मेरा सौभाग्य है कि मैं दूसरे लिटरेचर फेस्टिवल में आपके बीच में उपस्थित हूँ। वास्तव में ये आपकी मुझ पर विशेष कृपा है कि आप मुझे इस अवसर पर यहाँ आने का मौका देते हैं। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सामान्यतः आज का दिन ऐसा चयन हो गया कि आज कई फंक्शन इस तरह के हैं। आज वंदे मातरम का 150वां वर्ष प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में संपूर्ण देश में एक साथ वंदे मातरम गीत का उच्चारण करके इस 150वीं जयंती को बहुत आनंद के साथ सारे देश ने मनाया है, जिस वंदे मातरम के कारण से देश का स्वतंत्रता आंदोलन बहुत ही मजबूत और प्रखरता से आगे बढ़ा था। आज ही आपका ये लिटरेचर फेस्टिवल भी है और अभी आज 100 साल हॉकी को पूरा हो रहा है, उसका भी फंक्शन है। तो उसके कारण से मेरी कुछ मजबूरी हो गई जल्दी काम को पूरा करने के लिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे पहले। ये जो 3 दिन का जो फंक्शन है, महोत्सव है, एक तो आपने इसमें मुझे शरीक किया, इसके लिए धन्यवाद। सैनिकों की वीरता, त्याग और अदम्य साहस का मुझे नमन करने का अवसर दिया। मैं सोचता हूँ कि इस देश की आज़ादी के बाद हमारी देश की फौज ने इस भारत का जितना सम्मान बढ़ाया है, आने वाली पीढ़ी को उसकी जानकारी मिले, उसके बारे में जो कुछ भी हुआ है उसको लिटरेचर के माध्यम से आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने का जो प्रयत्न जिन बंधुओं ने भी किया है वो सभी बहुत सम्माननीय है। मैं सोचता हूँ कि भारत ने 48 का जंग देखा, उसके बाद 62 का जंग हम लोगों ने देखा, 65 का देखा, उसके बाद 71 का देखा, उसके बाद कारगिल का देखा और अभी अभी आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर एक और हम लोगों के सामने इस समय देश की फौज ने जिस प्रकार का अपना जलवा दिखाया वो हमारे अकेले के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए एक तरह से चौंकने वाला और चौंकाने वाला दृश्य बनकर के आया है। तो मैं सोचता हूँ कि 62 के युद्ध में ज़रूर हमको सेटबैक लगा, क्योंकि हमारी जितनी तैयारी और जितनी हमारी फोर्स को चाहिए था, हमने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में उलझ करके अपनी ताकत को बढ़ाया नहीं। और फौज हमेशा कहती है कि शांति वहाँ स्थापित होती है जहाँ ताकत होती है। अगर वास्तव में बराबर के दो पहलवान कभी लड़ते नहीं हैं,
लेकिन जब कमज़ोर को देखते हैं तो हर कोई उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। तो मैं सोचता हूँ यही स्थिति देश की भी होती है। देश की तैयारी के साथ देश का मान और सम्मान होता है। और वास्तव में 65 के युद्ध जो आपने दिखाया है, मैं विद्यार्थी था उस समय, इन्हें भारत की फौज ने और भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का स्टैंड लिया था वो भारत के लिए बहुत ही सम्मानजनक था। हमने युद्ध नहीं किया, युद्ध उन्होंने प्रारंभ किया। कच्छ में आकर के उन्होंने कब्जा करने का कोशिश किया, हमने तो उनको खदेड़ने का काम किया। उनको बहुत अभिमान था अपने पेटेंट टैंक पर कि ये तो ऐसा है जिसकी चद्दर टूट ही नहीं सकती। लेकिन भारत के वीर सपूतों ने इस पेटेंट टैंक को उस तरह से उड़ाया जैसे माचिस के डिब्बे उड़ते हैं ना। वो धरती भी अपनी ही पंजाब की थी, इसमें अब्दुल हमीद और उसके सब साथियों ने कबरगाह बना दिया वहाँ जाकर के पाकिस्तान के टैंकों का। तो वास्तव में ये जो फौज की बहादुरी है वो वास्तव में इस देश में वास्तव में आने वाली पीढ़ियों को समझने और समझाने की है। वैसे तो हमारा इतिहास प्रारंभ से ही रहा है कि हमारे गुरुओं की धरती ने कभी नहीं सोचा कि बलिदान कितना होगा और कितना नहीं होगा। चाहे बलिदान कितना भी हो, लेकिन हम झुक नहीं सकते, हम अपने सरेंडर किसी के सामने हो नहीं सकते। आपने देखा होगा प्रताप के पास सेना की कमी थी, साधनों की कमी थी, लेकिन कभी भी हथियार नहीं डाला। और जिसके बारे में कहा जाता है ना, कई भी इतिहासकार जो लिखते हैं, इसीलिए आपका ये जो लिटरेचर फेस्टिवल है ना, ये कम से कम सही घटना को सही लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। ये सबसे बड़ा देश की दौलत है। हमारा दुर्भाग्य क्या रहा है कि हमारी जो काबिलियत है उसको इतिहासकार किस रूप में डाल देता है। प्रताप के बारे में कहा कि हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप हार गए। कई समय तक हमको पढ़ाते रहे थे, अगर हार गए तो अकबर की सेना खमनोर तक भागी क्यों, आगे आनी चाहिए थे ना। अगर हम हार गए तो सभी जानते हैं कि रक्त तलाई तक जो है ना वो उल्टे भागे हैं, इसका मतलब हारे नहीं हैं। प्रताप को सुरक्षित निकालने के लिए ज़रूर प्रयत्न हुआ, ताकि कम से कम अगर प्रताप जिंदा रहेगा तो आज़ादी का दीपक जिंदा रहेगा। इस कारण से उसको हार के रूप में बने। तो मैं सोचता हूँ कि कारगिल का युद्ध जिस समय हुआ, एक तरफ लाहौर गए थे अटल जी प्रेम का हाथ बढ़ाने के लिए, और आपने देखा दूसरी तरफ उन्होंने आकर मोर्चे पर कब्जा करके ये सोच लिया कि अब हम अविजय हो गए। कारगिल की चोटी पर वो थे, हम नीचे थे, लेकिन हमारे सैनिकों ने मतलब किस तरह से बलिदान देकर के कारगिल से उनको खदेड़ा कि वो वापस कहीं दिखे भी नहीं। और हमारा वहाँ तिरंगा झंडा जब लहराता हुआ दिखा तो लगा कि यार भारत की सेना मरने से नहीं घबराती है, लेकिन विजय को हासिल करके ही दम लेती है। ये भारत का इतिहास अपनी सेना का रहा। मैं सोचता हूँ ये जो फेस्टिवल है आपका, इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा जो माना यह है कि जो कुछ भी हुआ है उसको सही ढंग से सही तक पहुंचाने का प्रयत्न करना। ये जो काम जिन जिन बंधुओं ने भी किया वो बहुत स्वागत के योग्य है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तो प्रत्यक्ष तो जानती नहीं है। जो कुछ लिखा है उसको पढ़ करके ही हम उसके बारे में कुछ अपना विचार बनाएंगे। तो मैं सोचता हूँ वास्तव में इसके लिए बहुत बहुत आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। फिर आपके एसोसिएशन ने प्रयत्न किया कि केवल पहले चंडीगढ़ में होता था, अब अमृतसर में भी आपके इस फेस्टिवल के कार्यक्रम से आपने उनको जोड़ने का प्रयास किया। इसी तरह से फिरोजपुर में भी आप अपना इस फंक्शन को आगे बढ़ाया। सच में मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन बना करके आपने इस सब को जोड़ करके इसको जिस ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसके लिए वास्तव में आप ये मैं सोचता हूं कि पंजाब में भी जैसे फील्ड मार्शल शेम मानिक शाह यहाँ हुआ है, एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह, सूबेदार जोगेंद्र सिंह, फाना सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल भगत सिंह, मतलब एक तरह से पंजाब तो मतलब एक तरह से हमारे सेना और सेना के अधिकारियों से भरा पड़ा है। मतलब सबसे ज़्यादा बलिदान अगर देश की आज़ादी के पहले भी और देश की आज़ादी के बाद भी आज तक जितना पंजाब का योगदान रहा है, मैं सोचता हूँ इसके लिए सारा देश आपको बहुत सम्मान के साथ देखता है। मेरे अकेले चंडीगढ़ में ही जब मैं इतने रिटायर्ड अधिकारियों को देखता हूँ
और उनको देखता हूँ, मुझे आपकी कृपा, आप कह रहे हो मुझे को मोटरसाइकिल पे जुमाओगे। अब इस उम्र में मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दिया काफ़ी समय से, फिर भी अगर आपका होगी इच्छा तो कोशिश कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में ये चंडीगढ़ का और अब की बार का जो आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, वास्तव में वो तो देख करके सारी दुनिया को पता लग गया कि भारत वो भारत नहीं है जो 62 का था। अब भारत तुम सबके पटाखे फोड़ना जानता है। जिनको ये लगा था ना कि हमने तो ऐसा पटाखा बना दिया जो दे दिया पाकिस्तान को, चाहे जहाँ फोड़ देगा, उतने ड्रोन इतनी मिसाइल ठोकी, सारी की सारी हवा में उड़ गई। इसका मतलब भारत की ताकत को इस पहली बार एहसास हुआ। और आपने जो ब्रह्मोस्त्र का जो प्रयोग किया ना, एक ही गया था, एक नहीं सारी दुनिया को हिला दिया कि भारत के पास जिस प्रकार की शक्ति है, ये अणु शक्तियाँ तो कहीं रह जाएगी, वहीं फूट करके बर्बाद हो जाओगे। इस बात का एहसास करा दिया। इसके कारण से दुनिया आज जो मानती है हमको, वो हमारी ताकत से मानती है। बाकी तो लाल बहादुर शास्त्री ने छोटा आदमी तो ज़रूर था, लेकिन जिस हिम्मत से उसने युद्ध और अमेरिका को ललकार कहा था कि मैं कोई समझौता नहीं करूँगा, पर दुर्भाग्य था हमारा कि हम हमेशा फौज से जीतते हैं, सेना से जीतते हैं, लेकिन टेबल पर हार जाते हैं, और उसके कारण से हमको कई बार नीचा देखना पड़ा। बाकी हिंदुस्तान की फौज ने इस बात की चिंता नहीं की कि इसका परिणाम क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। वो केवल और केवल हिंदुस्तान के तिरंगे को देखता है और उसकी रक्षा के लिए अपने को कुर्बान कर देता है। इतनी मजबूत फौज किसी दुनिया में किसी के पास नहीं है। लोग बच कर के युद्ध लड़ना चाहते हैं, हम साला सामना करके युद्ध करना चाहते हैं। और आपने देखा होगा 62 के युद्ध में भी हमारे फौजियों ने जिस प्रकार का कीर्तिमान स्थापित किया, बिना हथियार के भी ढेर करके जो है ना परमवीर चक्र प्राप्त करने का अगर सौभाग्य किसी को मिला तो भारत के बहादुर जवानों और अधिकारियों को मिला है। इस बात को ठीक नीचे तक पहुंचाना ये बिना लिटरेचर के संभव नहीं होता। आप और हम यहाँ आज भी जिंदा हैं तो गीता और महाभारत का रचना हो गई, इसके कारण से जानते हैं कि भगवान राम क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अगर तुलसीदास जी लिखते नहीं तो आप और मैं कहाँ से पढ़ता। आज जो कुछ भी लिख रहे हैं वही तो आगे की पीढ़ी को जाने वाला है, उसी में से तो उसको मिलने वाला है। और आज आपने यहाँ 3 बुकें जो है लॉन्च की है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और छोटी सी बच्ची ने भी पहली बार इतना तगड़ा प्रयास किया कि आप सब लोग उसकी ताली बजाकर उसका अभिनंदन करो। कल्पना की कोई उम्र नहीं होती है, कल्पना की कोई उम्र नहीं होती है। उसका सोच कहाँ तक जाता है, उसके आधार पर वो अपनी लेखनी को डालता है। मैं सोचता हूँ अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अगर इस वंदे भारत की रचना नहीं करता, माँ भारती को एक जमीन का टुकड़ा नहीं माना हमने, इसको साक्षात माँ माना है। और उसके आधार पर उसने एक एक शब्द में जिस प्रकार के माँ की महिमा को और उसकी ताकत का एहसास कराया ना, इसके कारण से सारा देश है ना वंदे मातरम बोलने लग गया और आंदोलन में कूद पड़ा। जेल जाने वाला भी वंदे मातरम कहता, गोली खाने वाला भी वंदे मातरम बोलता था, और फांसी पे लटकने वाला भी वंदे मातरम बोलते हुए इस दुनिया से विदा हो जाता था। ये धरती कुछ अलग प्रकार की है। और इस धरती को इतना जो मान आपने आज़ादी के बाद फौज के माध्यम से दिलाया, मुझे तो पहली बार, क्योंकि मैं राजस्थान का आदमी हूँ, कई बार जब युद्ध शुरू होता तो हम राजस्थान के कई गाँवों को थोड़ा पीछे ले आते हैं ताकि हमारा जो है ना सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ मैंने अजीब दृश्य देखा है ना, कोई गांव खाली करने को तैयार नहीं। हमने कई बार डीसी से बात की, उन्होंने कहा नहीं हमारी बच्चे और माताएं बहनें चली जाएगी, हम तो अपने फौजी के साथ खड़े रहेंगे। अगर ये यहाँ खड़े रहकर देश की रक्षा कर सकते हैं तो कम से कम हम इनके साथ खड़े रह करके इनकी मदद तो कर सकते हैं। ये जज्बा जिस जगह का हो उस जगह के बारे में वास्तव में कोई विचार करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ आपने ये बहुत अच्छी है ना फेस्टिवल के माध्यम से, आपने इस रचना के माध्यम से आने वाली पीढ़ी तक इस बात को जो पहुँचाने का प्रयत्न किया है, वही वास्तव में आगे की पीढ़ी के लिए होगा। 2047 कैसा होगा, जैसा ये नौजवान होगा वैसा होगा। वास्तव में जो देश की कल्पना करते हैं ना, उस कल्पना को साकार तो ये नौजवान पूरा करेगा। कल का भविष्य तो ये है। हम सब लोग तो अपनी बात कह करके चले जाने वाले हैं, लेकिन देश की ताकत को ताकत बनाने के लिए उसको कोई मसाला चाहिए, जिस मसाले को पढ़कर उसका दिल और दिमाग बनता है।
भारत ने आज तक इस युद्ध को लड़े है ना, उसका मतलब हमारे बाप दादाओं ने कुछ किया और लिख करके गए, उसको पढ़ करके हमको प्रेरणा मिलती है और उसके अनुसार हम ये तो जीवन तो ऐसा सोचते हैं जैसे आया और गया, आत्मा अमर रहती है, शरीर का चोला बदलता है, और इसलिए चोले के बारे में भारत ने कभी ज़्यादा चिंता की नहीं है। तो वास्तव में मैं आप सबका बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे यहाँ अवसर देते हैं और आप मुझसे जो उम्मीद करते हैं कि मैं आपके लिए कहाँ कहाँ काम और उपयोगी हो सकता हूँ, मैं हर समय आपके सामने उपस्थित हूँ। आपका मैं कोई राज्यपाल होने से आसमान में नहीं चढ़ जाता हूँ, मैं भी जनता के बीच का ही आदमी हूँ और जनता के बीच ही रहना मेरे को ज़िंदगी का शौक़ है। मैं सोचता हूँ मैं दुनिया से अलग रह कर के अपना जीवन जीऊँगा तो ये जीवन कोई काम का नहीं है, जो दूसरों के काम आ सके वही जीवन है, बाकी तो सब बेकार है। इस बात को सोच कर के हम इस देश में चलते हैं और इसके कारण से हम सब लोग प्रयत्न करें कि जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, अब चौथी आर्थिक शक्ति बन गया, इसी साल बन जाएगा, इस महीने का अंत तक या 2 महीने के बाद, है ना। इतनी प्रोग्रेस 11वें स्थान से बढ़ कर के हम चौथे स्थान पर आ रहे हैं, ये कोई सामान्य उपलब्धि थोड़ी है। आपने देखा होगा कि आपके सैनिक और सेना के लोगों ने जो हथियार हमारे यहाँ तैयार किए हैं, अब हम अपने हथियारों के आधार पर भी केवल और केवल हम ही जिंदा नहीं हैं, हम दुनिया के कई देशों के हमारे हथियार को निर्यात कर रहे हैं। इसका मतलब भारत एक अलग प्रकार का सोच का देश है, इसको मौका मिलना चाहिए अपनी शक्ति का और अपनी बुद्धि का उपयोग करने का। जितना अवसर मिलता है वो उसको करके दिखा देता है। तो मैं सोचता हूँ आप सबके हाथों में, देश के जनता के हाथों में भारत सुरक्षित है और देश के प्रधानमंत्री जैसा चाहते हैं कि वास्तव में हम 2047 के पहले दुनिया के एक क्षेत्र में ही, हर क्षेत्र में नंबर 1 भारत बनेगा। ये इसमें क्षमता है और उस क्षमता को आप और हम सब मिलकर के और मजबूत करें, इतनी आप सबसे प्रार्थना करके एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार। और आपने मुझे यहाँ दूसरी बार भी आने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और आप मुझसे जो भी उम्मीद करते हैं, जो मेरे लिए काम बताएंगे, मैं हमेशा आपके लिए और सेना के हर बंधु के लिए जो भी मैं इस पद पर रहते हुए अपना काम कर सकता हूँ, मैं करने में अपना सौभाग्य समझूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Please rise for national anthem.